Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are good. Today is our first online class of expository writing subject. We have taken few classes and we have covered 2 or 3 topics, I think. The first topic was about the writing and its types, and the second lecture was about the expository writing, its characteristics, and the purpose of expository writing. Now today our lecture is about what are the different stages of writing. Like जब हम राइटिंग स्टार्ट करते हैं, कोई भी टॉपिक लिखते हैं, तो उससे पहले उसके ड्यूरिंग और उसके एंड पे हम क्या करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इधर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा राइटिंग। तो राइटिंग को देख के आपके माइंड में क्या आता है? ओके, इफ़ anyone have any question, then there is the option there, raise hand. You have to click that option. फिर मैं आपको आपका जो माइक है वो अनम्यूट कर दूंगी, फिर आप क्वेश्चन करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द क्लास। एंड इफ़ आई वांट टू आस्क क्वेश्चन, तो मैं ड्यूरिंग क्लास भी क्वेश्चन कर सकती हूँ। फिर आपने हैंड रेज करने हैं एंड देन आई विल अनम्यूट योर माइक। ओके, नाउ व्हाट इज़ राइटिंग? राइटिंग क्या होती है? हम राइटिंग किसको कहते हैं? When we share our thoughts or ideas in written form or in words form, जब हम अपने ideas को, अपने thoughts को words मिलाते हैं, and when we write those words on any page or any screen, so it's all about the writing, ठीक है। Then here is a quote given: to write well is to have power. This is a quote. And this quote was written by one of our writer. So इस quote को देखकर आपको क्या लगता है, इसका क्या मतलब होगा? To write well is to have power. This quote was written by Frederick. ठीक है, फ्रेडरिक ने ये quote लिखी थी। तो इस quote का क्या मतलब हो सकता है? To write well is to have power. किसी को आंसर पता है? Then raise your hand. Yes? Okay. To write well is to have power. It means that if you write well, if you write in a more better way, then you're able to share your thoughts very easily. Okay? अगर आप अच्छा लिखते हैं, आप इफ़ेक्टिवली कोई चीज़ लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप अपने आइडियाज़ को अच्छे से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको 2 स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल देती हूँ। There is one student who is good in writing, who is good in speaking. उसकी writing skill बहुत अच्छी है, उसकी वो fluent है। एंड एक और स्टूडेंट है जिसकी थोड़ी राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, लाइक ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और ये सारी चीज़ें उसको मसला आता है इनमें, ठीक है। तो कौन सही अपना थॉट्स, अपने आइडियाज़ शेयर कर सकता है? फर्स्ट वन ना, बिकॉज हिज राइटिंग स्किल इज़ गुड, his speaking skill is good, so he is able to share or to deliver his ideas in a more better way, ठीक है। So it depends on this. If you have the power, if you are able to write anything very smoothly, so you're able to share your thoughts, your ideas very effectively. Okay, now experts says that writing should be viewed as a process and as a product. It means that writing has 2 main sides. One is the process and the other one is the product. Process और product का यहाँ क्या मतलब हो सकता है? Process वो पूरा तरीका, वो पूरा process step by step when you write anything. From which step you start और कहाँ तक फिर आप जाते हैं. Like for example, starting with the brainstorming, you have to first select a topic and then you have to brainstorm about that topic, and then you make outline of that topic, and फिर आप उसके बाद क्या करते हैं? You make a draft of that topic, and then after that you proofread,
उसके बाद आप प्रूफ रीडिंग करते हैं, देन यू एडिट इट, फिर उसको फॉर्मेट में लाते हैं, ठीक है। ये सारा प्रोसेस जो है राइटिंग, आप जब कुछ लिखते हैं इस पूरे को वो एक प्रोसेस कहते हैं। और जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल आपके पास एक रिज़ल्ट आ जाती है, फाइनल आपके पास एक आर्टिकल आ जाता है, फाइनल ऐसे जो आप लिख रहे हैं वो फाइनल प्रोडक्ट जिसको बोल रहे हैं। सो प्रोसेस यू कैन से इज अ जर्नी ऑफ राइटिंग, इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ राइटिंग एंड द प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ दैट राइटिंग, ठीक है ना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब जो प्रोसेस मैंने अभी बोला और प्रोडक्ट बोला, उसमें राइटिंग एज अ प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं राइटिंग की। फर्स्ट इज़ प्री राइटिंग स्टेज, सेकंड है द राइटिंग स्टेज, इसको आप ये भी कह सकते हैं वाइल राइटिंग स्टेज, ठीक है। वाइल राइटिंग स्टेज के प्री राइटिंग क्या है, प्री मीन्स बिफोर, व्हेन यू आर राइटिंग एनीथिंग, तो बिफोर दैट राइटिंग आप क्या क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। वाइल राइटिंग, जब आप राइटिंग स्टार्ट कर लेते हैं तब आप क्या क्या करते हैं। पोस्ट राइटिंग, व्हेन यू कंप्लीट योर राइटिंग, देन आफ्टर दैट आप क्या क्या करते हैं। एंड देन पब्लिकेशन। अब ये है, ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है, इसकी अलग अलग भी आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगी वो किसी और क्लास में इंशाल्लाह। अभी आप सिर्फ इसको आप इतना समझे कि ये क्या क्या स्टेजेस हैं। लाइक प्री राइटिंग हम ले लेते हैं, प्री राइटिंग में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम आउटलाइनिंग बनाते हैं, हम अपना एक गोल सेट करते हैं, प्लानिंग करते हैं। सो ऑल दीज स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस स्टेज, the brainstorming, the outlining, the setting of the goal, the plan, the setting of your plan, like setting the plan, all these steps involved in this stage. Then the writing stage में या while writing stage में आप फिर क्या करते हैं, आप ड्राफ्टिंग करते हैं, ठीक है। ड्राफ्टिंग का पूरा जो प्रोसेस है, उसके अलावा आप जो एडिट कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें हैं। एंड देन पोस्ट राइटिंग, आफ्टर राइटिंग आप क्या क्या करते हैं, आप उसको फिर एक प्रॉपर फॉर्मेट में ले आते हैं, ठीक है। एंड देन यू प्रूफ रीडिंग करते हैं, ठीक है। प्रूफ रीडिंग फिर हमारे साथ आगे आपको मैं बताती जाऊंगी। फिर उसके बाद पब्लिकेशन क्या होता है, पब्लिकेशन आप फाइनल जो आप देन पब्लिश योर राइटिंग, ओके। दीज आर डिफरेंट stages. So the first stage is pre-writing stage. Here you think about your topic first and then gather the ideas. First you have to think about the topic, about which topic you are going to start writing. It depends on the situation. For example, if you are in exam, और मतलब आप एग्ज़ाम में हैं और आप कोई उस पर टॉपिक लिख रहे हैं, आप अपने साथ कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं राइटिंग की, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट सिचुएशन, ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट, इन विच कॉन्टेक्स्ट यू आर राइटिंग एनीथिंग, ठीक है। सो बिफोर राइटिंग फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट योर टॉपिक। अगर मैंने आपको टॉपिक दिया पेपर में वो तो सही है, बट आप उस पर सोचेंगे, अपने आइडियाज़ बिल्डअप करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। अगर एग्ज़ाम नहीं है, आप ऐसी ही कोई टॉपिक पे राइटिंग करना चाह रहे हैं, देन फर्स्ट यू थिंक अबाउट दैट टॉपिक and then gather different ideas related to that topic. Brainstorm, okay, brainstorming करेंगे, different ideas जो जो आपके माइंड में आएंगे, you have to note down those ideas, those points for your own self, okay. Pre-writing stage, a number of ideas gathering strategies which can help you generate ideas. A topic for your writing task include free writing, ब्रेनस्टॉर्मिंग, जर्नल राइटिंग, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये फ्री राइटिंग क्या है, फ्री राइटिंग मीन्स वट एवर कम्स इन योर माइंड, नोट करें, राइट डाउन, जो भी आपके माइंड में आता है, वट एवर कम्स इन योर माइंड अबाउट दैट टॉपिक, रिलेटेड टू योर टॉपिक, देन नोट इट डाउन फॉर योर सेल्फ, बिकॉज दिस इज़ नाउ प्री राइटिंग स्टेज। आप अपने लिए लिख रहे हैं, आप किसी के साथ फिलहाल इसको शेयर नहीं कर रहे। इट्स योर राइटिंग, इट्स योर नोट्स, यू आर मेकिंग योर ओन नोट्स, ठीक है। वो जब आप पेपर की तैयारी करते हैं, टॉपिक की आप नोट्स बनाते हैं, अ काइंड ऑफ दैट राइटिंग भी हो सकती है, ठीक है।
फ्री राइटिंग यही है, जो वट एवर कम्स योर माइंड आप उसको लिखते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में आपको बताया, कई बार बताया, वही बात है कि उसी रिलेटेड टू दैट टॉपिक जो भी पॉइंट्स आपके माइंड में आते हैं देन नोट इट डाउन। जर्नल राइटिंग भी यही, आप जिस ऐसे के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में यू आर राइटिंग, सो दिस इज़ द प्री राइटिंग स्टेज। नाउ द सेकेंड स्टेज क्या है, द राइटिंग और वाइल राइटिंग स्टेज। ये आप लोग लाइंस लगाना बंद कर दें स्क्रीन पे, ठीक है, और लेक्चर पे फोकस करें काइंडली। द राइटिंग स्टेज, in this stage you begin to plan your writing. Now here you make a plan. How you make a plan? This plan involves formulating a topic sentence, identifying purpose and audience, choosing a point of view, deciding on the verb tense and cohesive devices, which cohesive devices you are going to use. ठीक है, इसमें आप प्लानिंग करेंगे, आप हाउ यू आर गोइंग टू मेक दैट प्लान, किस तरह आप प्लान बनाएंगे, किस तरह आप आउटलाइन बनाएंगे, क्या क्या आप करेंगे, किस प्रोसेस से गुजरेंगे, किस तरह आप ड्राफ्टिंग करेंगे। इस स्टेज में जब आपको मैं ये अलग से कराऊंगी एक एक स्टेज को, उसमें फिर आपको अलग अलग समझ आ जाएगी कि ये स्टेप्स है। अब ड्राफ्टिंग जो है, ड्राफ्टिंग के अपने अलग अलग स्टेप्स हैं कि फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, लास्ट फाइनल ड्राफ्ट। व्हेन यू आर मेकिंग or writing any draft, there are few stages or few steps of drafting as well. ठीक है, so the first one is formulating a topic sentence. We also discuss the topic sentence in a lecture of how to write a good paragraph. There, like to write a good paragraph, you have 3 steps: the topic sentence, supporting details and concluding sentences. So हमने वहाँ पर topic sentence के बारे में already पढ़ा था, डिस्कस किया था। अब सबको याद होगा क्या है टॉपिक सेंटेंस। आई एम आस्किंग अबाउट टॉपिक सेंटेंस। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस स्टूडेंट्स? किसी को आंसर पता? ओके, टॉपिक सेंटेंस, यू एग्जामिन योर आइडियाज एंड बिगिन टू फोकस देम अराउंड वन मेन आइडिया। Topic or topic sentence, there is a difference between a topic and a topic sentence. टॉपिक में और टॉपिक सेंटेंस में फ़र्क ये है, टॉपिक आपका एक वर्ड का, 2 वर्ड का हो सकता है, उसमें आपका मेन आइडिया क्लियर नहीं होगा। बट इन टॉपिक सेंटेंस देयर मस्ट बी अ मेन आइडिया। अबाउट दैट मेन आइडिया यू आर गोइंग टू राइट एनी पैराग्राफ, ठीक है, और एनी ऐसे, उसी पूरे मेन आइडिया पे आपका पूरा पैराग्राफ, पूरा ऐसे बेस्ड करेगा। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस क्या है? द सेंटेंस स्टेटिंग द मेन आइडिया दैट which summarizes the idea of paragraph. So here you have mentioned or you have given the main idea of your paragraph, like you're going to write a paragraph on that main idea. So उस टॉपिक सेंटेंस में आपका मेन आइडिया क्लियर होगा और then you're going to write a paragraph then. Okay, is generally placed as a first sentence of a paragraph. हमेशा कभी कभार कुछ जगहों पे ये भी बताया कि ये कभी कभार मतलब बीच में भी आ सकता है, एट द स्टार्ट। इम्पॉर्टेंट ज़्यादा जो है, योर टॉपिक सेंटेंस मस्ट बी एट द बिगिनिंग। सो योर फर्स्ट सेंटेंस इज योर टॉपिक सेंटेंस। contains a word or a phrase that specifically direct the writer as to what he or she is going to discuss or what about in his paragraph. Like वही बात है, इसमें यही पता चल जाएगा what you are going to discuss in that paragraph and that will be discussed in supporting details. वो जो आगे इसकी पैराग्राफ में आएगा, सपोर्टिंग डिटेल्स भी वही हैं जो आपके मेन आइडिया को आगे लेकर जाता है, सारा कुछ उसमें डिस्कस हो जाएगा। राइटिंग अ गुड टॉपिक सेंटेंसेस, आप एक अच्छा टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखेंगे? दिस, अब ये जो है ना, दिस आर द प्रोसेस, दिस आर द स्टेजेस दैट आर इन्वॉल्व इन राइटिंग वाइल प्री राइटिंग। सॉरी, प्री राइटिंग में तो अलग थी ना, दिस इज वाइल राइटिंग व्हेन यू आर गोइंग टू मेक अ प्लान। ठीक है, आप एक ड्राफ्ट बना रहे हैं, एक रफ ड्राफ्ट आप यहाँ पर बना रहे हैं, तो उस ड्राफ्ट के बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये यहाँ आपको वो बताया जा रहा है। Be careful, topics are not the same as the topic sentences. As we discussed earlier, topics
एंड टॉपिक सेंटेंस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है. टॉपिक्स आर द सब्जेक्ट्स यू विल राइट अबाउट. इट्स द काइंड ऑफ अ सब्जेक्ट यू आर राइटिंग अबाउट, इट्स काइंड ऑफ अ टाइटल वो आप गिवन होता है, ठीक है. एंड टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन आइडिया यू हैव डेवलप ऑन अ टॉपिक. ऑन दैट टॉपिक यू डेवलप अ टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस, देखिए टॉपिक एंड सेंटेंस उसके साथ आया है, सो इट मीन्स दैट एक सेंटेंस होगा जिसमें आपका मेन आइडिया एलेबोरेट हुआ होगा. In the topic sentence, your main idea will not be elaborated, but in your topic sentence, your main idea will be elaborated in a sentence form. Okay? For example, here is the topic given and also there is the topic sentence given. Why courtesy is important? Courtesy क्यों important है? Courtesy like someone who is very kind, कोई kind हो, बहुत respectful हो. Respectful और kindness को बोलते हैं courtesy. This is the topic. Why courtesy is important. Now see the topic sentence. Courtesy takes the conflict out of unpleasant encounters. अब देखें टॉपिक आपका आया था why courtesy is important, कि वो क्यों ज़रूरी है. courtesy क्यों ज़रूरी है is the topic. आपको पता चल जाएगा. Okay, now we are going to write about the courtesy, the importance of courtesy. ठीक है. And then फिर टॉपिक सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कर्टिसी में, किस जगह पे, किस चीज़ में उसमें हम बात करेंगे. बहुत सारी बातें हो सकती हैं उसी रिलेटेड ना. ठीक है. सो मेन आपका टॉपिक सेंटेंस में आ गया. मेन आइडिया आपका यही होगा कि कर्टिसी टेक्स द कन्फ्लिक्ट आउट ऑफ अनप्लेजेंट इनकाउंटर्स. इसका क्या मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर काइंड, व्हेन यू आर रिस्पेक्टफुल in any tough situation, ठीक है, any tough situation में अगर आप काइंड हैं, आप सब्र से काम ले रहे हैं, then you're able to face any type of tough situation. तो आप कोई भी tough situation आए, कुछ भी आए, then you are able to face all such situations with that courtesy, with that kindness, with that respect. So आप का जो मेन आइडिया है वो इस टॉपिक सेंटेंस से क्लियर हो गया. ठीक है. हियर इज़ द एक्सरसाइज. मैंने आपको पहले से आंसर्स भी दिए हैं, बट आगे जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आंसर नहीं होंगे. उन एक्सरसाइज को आप खुद ही सॉल्व करेंगे. ठीक है. टेल वेदर द आइटम्स मीन्स जो गिवन नीचे सेंटेंसेस हैं, which one is the topic and which one is a topic sentence. The first one, 3 characteristics of a good friend. So this is a topic. This is not a topic sentence. This is a topic. Learning to drive takes practice. This is a topic sentence. The most frightening experience in my life. अब देखें ये टॉपिक क्यों हो गया, क्योंकि इसमें आपको पूरा मेन आइडिया नहीं बताया. वो फिर मेन आइडिया तब आपके टॉपिक सेंटेंस में आएगा कि which is most frightening experience in your life, and that will be clear from your first topic sentence. ठीक है. I learned to be punctual on my first job. So this is a topic sentence. अगर इसका आप टॉपिक बनाएंगे तो आप पंक्चुअलिटी भी लिख सकते हैं. ठीक है. पंक्चुअलिटी हो सकता है, बट पंक्चुअलिटी तो बहुत सारी चीज़ों में आप कर सकते हैं. बट नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पंक्चुअलिटी. किस की बेस पे, कि मैं अगर मैं जॉब पे जाऊँ, सो आई लर्न टू बी पंक्चुअल ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ जॉब. ठीक है ना. तो दिस इज़ योर टॉपिक सेंटेंस. अ यंगर ब्रदर कैन बी अ गुड बडी. अ यंगर ब्रदर कैन बी अ गुड बडी. सो दिस इज़ अ टॉपिक सेंटेंस. इसका टॉपिक क्या हो सकता है? इसका टॉपिक कुछ भी हो सकता है. आप ब्रदर के बारे में कुछ, यंगर ब्रदर भी हो सकता है. ठीक है. और कोई भी आपके जो माइंड में आए, पर टॉपिक सेंटेंस, फ्रॉम टॉपिक सेंटेंस द मेन आइडिया विल बी क्लियर. अगर यंग ब्रदर इज़ योर टॉपिक, दैन यंग ब्रदर के बारे में आप क्या लिखेंगे, सो वो आपके टॉपिक सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा, बिकॉज दैट शोज द मेन आइडिया. नाउ here they just mention that topic sentence do not announce, they make a point. Like announcement, there is a difference between a topic sentence and announcement. topic sentence में हम announce नहीं करते, हम एक आइडिया देते हैं, हम एक पॉइंट देते हैं. ठीक है. अनाउंसमेंट क्या है? आई विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग टायर्स.
So this is just like announce कर रहा है, it's a kind of announcement. Like announcement क्या हो सकती है, हम कोई like एक चीज़ notify करते हैं, हम कोई information देते हैं कि हम ये काम करेंगे. For example, if you of our HOD call us for a meeting, so that is a kind of announcement. ठीक है. So एक kind of meeting arrange करना, notification देना, वो सारी चीज़ें announcement में आ सकती हैं. But topic sentence थोड़ा change है. अब यहाँ देखें, topic sentence, changing attire is easy if you have the right tools and follow a simple process. So here main idea is clear. Okay, if you are changing attire, then it's easy if you have such type of tools with you. Then another announcement, आपके example given, an analysis of why recycling paper is important will be the subject of this paper. वो clear cut बताया गया है कि इस पेपर में ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में है, बता रहे हैं आपको, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. Then topic sentence, recycling paper is important because it saves trees, money and even certain animals. So here the main idea is clear. You are going to discuss about the recycling of paper. ठीक है? Now this is an exercise. Determine whether or not the statement is an announcement. So this is your task to complete this exercise. इसको आप practice करें. इसमें आप देखें कि which one is announcement and which one is not. And then if you have any problem, then discuss it with me. अगर आप मुझे अभी बता सकते हैं, अभी solve कर सकते हैं, then raise your hand. This is online class, I know, but you have to take part also in online class. If you know the answer, then raise your hand. Okay, fine. This is your exercise. You have to solve it, okay? Why writing good sentences? Okay, now एक और बात आ गई है. Topic sentences should neither be too broad nor too narrow. आपका टॉपिक सेंटेंस बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा नैरो भी नहीं होगा. ब्रॉड मीन्स नॉट टू जनरल एंड नैरो मीन नॉट टू मच फोकस्ड. हो ब्रॉड हो बट नॉट टू मच ब्रॉड. नैरो हो, फोकस्ड हो, बट नॉट टू मच नैरो. ओके, सो हियर इज सम एग्जांपल्स. आपको क्लियर हो जाएगा कि टू ब्रॉड टॉपिक क्या होता है एंड टू मच नैरो टॉपिक क्या होता है. टू ब्रॉड, this is a too broad topic sentence. I changed a great deal in my last year in high school. This is too broad. मतलब बहुत जनरल सा है. I changed a great deal in my last year in high school. So a narrow, इसको आप जब बेटर एक टॉपिक बनाएंगे, थोड़ा सा इसको नैरो कर लेंगे. किस तरह कहेंगे? In my last year of high school, I overcome my shyness. अब देखिए, ऊपर बताया क्या जनरल टॉपिक था कि उसने अपना खुद में क्या चेंज लाया, क्लियर नहीं था. नाउ बेटर टॉपिक में क्लियर हो गया. इन माई लास्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल आई ओवरकम माई शाइनेस. मैंने अपनी शाइनेस को कम किया, ख़त्म किया. ठीक है. नाउ हियर इज अ टू नैरो टॉपिक सेंटेंस. टू नैरो मीन टू फोकस्ड. इतना फोकस्ड भी ना हो कि उससे आपका मेन आइडिया क्लियर ना हो. आई फियर एग्जामिनेशंस.